السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو بھائی خیریت سے ہیں؟ جی الحمد للہ۔ کون صاحب؟ ابو بھائی میں ذاکر بول رہا ہوں دلی سے۔ جی بتائیے۔ ابو بھائی یہ جاننا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر، سب سے اونچائی پہ، سب سے بلندی پہ، اپنے عرش کے اوپر، اپنی شان کے لائق۔ ذات کے اعتبار سے؟ ہاں ذات کے اعتبار سے؟ اب دیکھیے اس میں ذات اور بات یہ سب میرے بھائی بات الگ ہے۔ یہ میں تو آپ اللہ سے پوچھ تعالیٰ رہا خود ہوں۔ عرش پہ ہے۔ عرش تو وہی تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ذات کے اعتبار سے زمین پہ بھی ہے، اسی تعلق سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیے زمین پہ تو اللہ آ ہی نہیں سکتا نا، یہ تو جو کہتا ہے یہ میرے بھائی کفر کرتا ہے۔ اچھا زمین پہ اگر اللہ آنا چاہے تو جیسے بندوں کے ساتھ اگر زمین پہ آنا چاہے ذات کے اعتبار سے نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ کے؟ دیکھیے یا تو یہ کہنا چھوڑ دیجئے اللہ اکبر، اللہ سب سے بھائی وہ کیا ہے بڑا ہے، تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو جو یہ دنیا ہے زمین ہے اس سے اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے سامنے تو یہ زمین کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ زمین آپ اور ہمارے ایسے جو انسان ہیں ان کے لیے بہت بڑی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بہت چھوٹی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمین پہ نہیں آتا ہے۔ اچھا تو ابو بھائی پھر اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہو جائے گا؟ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے پر اللہ بڑا ہے، اللہ عرش پر کیسے؟ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر پھر کیسے ہے؟ یا عرش بڑا ہے تو اللہ تو بڑا ہے نا، پھر عرش کیسے بڑا؟ نہیں بھائی یہ سب فالتو سوال ہے، جی یہ فرضی سوال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھو اللہ بڑا ہے، اللہ ذات کے اعتبار سے انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، تو کس طریقے سے ہے؟ کیونکہ جیسے اللہ زمین پر نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ پھر عرش پر کیسے ہے؟ بھائی اس کا جواب پہلے ہم نے دے دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے، جیسا اس کی شان ہے اپنی شان کے لائق قائم اللہ سبحانہ۔ اچھا تو بھائی آپ مجھے اس کو بتانا اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ کہ قرآن میں ایک آیت پڑھ رہا تھا جس میں یہ آتا ہے مایا تو اس میں جب میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں آیا تھا تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے، تم اس سے کم ہو جاؤ یا زیادہ ہو جاؤ اللہ تمہارے، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ سب سے بھائی جان ایک تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس میں ایک لفظ آیا ہے کہ ہوا ماں ہوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو یہ واؤ کا جو لفظ آیا ہے یہ تو ذات کے، ہوا کا لفظ آیا تو ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے نا تو بھائی؟ نہیں نہیں نہیں، ذات کے لیے آتا ہے پھر علم کے لیے آتا جو ہے؟ یہ آیت ہے اس سے میرے بھائی تمام اہل سنت کے جو امام ہیں محدث ہیں سب نے ایک ہی معنی لیا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے، آپ تین ہیں تو چوتھا اللہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ یہ پوچھ رہا تھا آپ کو بھائی، بھائی آپ پوچھتے رہیں گے جواب ہی نہیں دینے دیتے ہیں، چلیے آپ ہی پوچھتے رہیے پھر آپ۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوا ذات کے لیے آتا ہے یا علم کے لیے آتا ہے، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیں۔ ہاں تو آپ اس کے آگے بولیے پھر۔ تو بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں اس میں آیا ہوا ماں ہوں اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو وہ ذات کے لیے آتا ہے یا علم کے لیے آتا ہے؟ ارے اس کی اگلی آیت بھی تو پڑھیے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پکارنے والوں کی جو آواز ہے پکار اس کو سنتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ میرے بھائی کیا ہے، وہاں پہ علم ہے، صفات مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے آپ کے بغل میں نہیں آنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تو آپ دل میں جو اپنے سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ بالکل جائز بات ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا اس میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے ہوا معہم اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو یہ ہوا کا جو ضمیر ہے یہ تو ہمیشہ ذات کے لیے آتی ہے نا؟ علم ہے، علم علم کے لیے آتی ہے ہوا؟ ہاں تو بھائی ایک دلیل دے دو ہوا علم کے لیے آتا ہے۔ بھائی دعویٰ آپ کر رہے ہیں ذات ہے یہاں پہ، تو آپ میرے بھائی ثابت کیجیے نا، ہم کیوں ثابت کریں گے؟ آپ کو بھائی میں یہی تو پوچھ رہا ہوں ہوا جو اس میں لفظ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر غالباً 54 میں کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہوا، تو اللہ نے اپنے تعلق سے بتا دیا۔ سورت کا نام تو بتا دیجیے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 54۔ جی
हाँ खोल के आप देख लीजिए, सूरह अल आराफ आयत नंबर 54 में अल्लाह ने बता दिया कि जो अल्लाह है वो तुम्हारा भाई वो क्या है, पालनहार है, रब है। उसने आसमान और जमीन को 6 दिनों में मतलब उसको बनाया, पैदा किया और फिर अर्श पर कायम हुआ। तो जब अल्लाह ताला ने अपने ताल्लुक से कोई चीज मेरे भाई बता दी है तो अब हम उसको दूसरी आयत से हम नहीं काटेंगे कि नहीं तीन है तो चौथा अल्लाह है, 2 है तो तीसरा अल्लाह है। अगर ऐसे ही अगर आप मेरे भाई इसको मान लेंगे ना तो माज़अल्लाह बहुत सारे अल्लाह हो जाएंगे। अल्लाह फिर जो एक है फिर वो हम बोल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मानिए आप हैं, आप 2 लोग हैं तो तीसरा आपके साथ अल्लाह है, और हम यहाँ इलाहाबाद में हम 2 लोग हैं तो भाई जो तीसरा अल्लाह हमारे साथ है। तो इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं क्या सबके साथ अल्लाह है? यहाँ पे इल्म माना लिया जाएगा ना। देखो अफसर भाई, इस हदीस की आयत के अंदर ये है कि तुम जहाँ भी हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, पर ये तो अल्लाह के साथ सिफत है ना, बंदे की निस्बत तो नहीं दी जा सकती ना। हाँ तो मान लिया ना मेरे भाई सिफत है ये, तो सिफत का कौन इनकार कर रहा है? आप तो उसमें जात मेरे भाई डाले दे रहे हैं कि अल्लाह खुद सबके साथ मौजूद है। मैं ये कह रहा हूँ ये तो अल्लाह की एक सिफत है, अल्लाह हर किसी के साथ होता है, पर उसमें जो लफ्ज आया ना वो आया है। मैं ये पूछ रहा हूँ वो जात के लिए आता है या इल्म के लिए आता है? इल्म के लिए मुराद लिया गया है। तो भाई मुराद किसने लिया है ये? भाई असल में आपको जो बेसिक उसूल है आपको उसूल नहीं मालूम है। नहीं, कुरान की जो आयत है उसकी जो तफसीर का पहला उसूल है भाई सुन लो भाई, देखो सुनना है तो सुनो वरना मैं फोन काट देता हूँ। जी बोलिए। सिर्फ आप सवाल करते जा रहे हो, जैसे मैं आधा जुमला बोलता हूँ बीच में आप अपना चालू हो जाते हो रेडियो बन के। भाई मैं तो एक सवाल कर रहा था, आप सवाल मत करो, आपने मेरे भाई और लेडी मेरे भाई कितने सारे सवाल कर रहे हैं और जैसे जवाब देने के लिए आधा जुमला हम बोलते हैं आप बक 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 चालू हो जाते हो। देखिए कुरान की तफसीर का पहला उसूल है कि जो कुरान की मेरे भाई जो तफसीर है वो खुद अगली आयतों से की जाएगी। उसका दूसरा उसूल है कुरान की जो आयतें हैं उसकी जो मेरे भाई तफसीर है वो अल्लाह के नबी की हदीस से की जाएगी। तो अब आइए देखते हैं कि आप जिस आयत से अल्लाह सुब्हानो ताला के खुद ठीक है जात के साथ सबके साथ मतलब भाई वो मौजूद जो होने का अकीदा पकड़ लें, दलील आप भाई वो ढूंढ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान में सूरह ताहा और गालबन आयत नंबर 5 में और सूरह अल आराफ आयत नंबर 54 में और सूरह अल फुरकान आयत नंबर 59 में वो पहले बयान कर चुका है कि जो रहमान है वो अपने अर्श पर कायम हुआ, मुस्तवी हुआ। अब जब अल्लाह सुब्हानो ताला ने पहले बता दिया है कि जो रहमान है वो अपने अर्श के ऊपर है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं दूसरी आयत में तो ये है कि नहीं तुम 2 हो तो तीसरा अल्लाह है, तुम 4 हो तो 5वां अल्लाह है। ये बात की बेबुनियाद हो जाती है। वहाँ पे इल्म तमाम मुहद्दिसीन ने इल्म माना लिया है। दरअसल बात आपकी बात में सुन चुका। दरअसल बात ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं अल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ अर्श पर है, अल्लाह और कहीं है ही नहीं, और कुछ लोग ये कहते हैं हम अल्लाह को अर्श पर भी मानते हैं, अपने साथ भी मानते हैं। अब जो ये अल्लाह ताला को अर्श पर भी मानते हैं दोनों जाहिल हैं, दे रहे हैं उसको मानते हैं। दोनों जाहिल हैं, दोनों जाहिल। तो अहले हदीस भी कहते हैं ना। नहीं अहले हदीस का मेरे भाई जो अकीदा है वो हम बयान करेंगे ना, आपकी मुँह से थोड़ी ना मेरे भाई मान लेंगे। भाई हम अहले हदीस हैं, हम अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा ये है अल्लाह सुब्हानो ताला अपने अर्श के ऊपर सबसे ऊंचाई पे बुलंदी पे अपनी शान के लायक कायम है और उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसकी पावर वो सबके साथ हर जगह मौजूद है। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह सिर्फ अर्श पे है। भाई सिर्फ का जुमला तो आपने मेरे भाई अपने मुंह से निकाला है। हमको तो जो हमारे अल्लाह के नबी ने मेरे भाई बता दिया वो हम लोग भाई नहीं सिर्फ का जुमला नहीं है ना, ये जुमला आपने अपने मुंह से डाल दिया है। तो आप कह रहे हैं अल्लाह ताला अर्श पर है, ठीक है अल्लाह अर्श पर है। अरे अल्लाह के नबी ने कहाँ बताया है? जहाँ अल्लाह के नबी ने देखिए जो ये कुरान है वो अल्लाह के नबी पे नाजिल हुआ था और अल्लाह के नबी ने ये साफ साफ मेरे भाई बता दिया है। अल्लाह के नबी ने एक बांदी से पूछा कि ऐन अल्लाह कहाँ है? तो जो वो बांदी होती है वो कहती है कि अल्लाह सुब्हानो ताला आसमान पर है। और अल्लाह के नबी उससे बता रहे हैं अर्श तो नहीं बता रहे हैं। अरे भाई अभी मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं इलाहाबाद में हूँ तो क्या इससे इंडिया में होने का इनकार हो जाएगा? अल्लाह ताला को आप नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि भाई मैं इलाहाबाद में हूँ तो इससे क्या मैं इंडिया में होने का इनकार कर रहा हूँ? आपको भाई आप इंसान हैं, वो अल्लाह है, अपनी तरफ निस्बत क्यों करते हैं? नहीं निस्बत हम नहीं कर रहे हैं, हम जो मेरे भाई एड्रेस है एड्रेस की आपको मिसाल दे रहे हैं, एड्रेस की आपको मिसाल दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई, एड्रेस की मिसाल। मैं अगर कह रहा हूँ कि भाई मैं इलाहाबाद में रहता हूँ तो इसका माना ये नहीं है कि आपने तो इंडिया बोला ही नहीं।
उत्तर प्रदेश आपने बोला ही नहीं, तो ये नहीं। इसी तरीके से जो बांदी है, बांदी ने जो एड्रेस है अल्लाह का, उसका जो अकीदा था वो बता दिया, आसमान पर है, फिस समा। अर्श कहाँ है? आसमान पे है ना मेरे भाई, जमीन पे तो है नहीं। हाँ, अगर बांदी कहती कि अल्लाह आसमान पे है और जो अल्लाह का अर्श है अगर वो जमीन पे होता, तब तो हम कहते हैं यार जो बांदी है यार उसने तो यार आसमान बोला है, और हम लोग कहते हैं अर्श है। लेकिन आसमान, अर्श, ये सब हम माना है। पहले के दौर में जो मेरे भाई जो लोग का अकीदा था वो ऊंचाई के लिए, बुलंदी के लिए आमतौर पर बोलते थे फिस समा, यानी कि आसमानों पर, बुलंदी पे है। तो ये आम वहाँ का मेरे भाई एक बोलचाल थी। अब उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में हमको समझना पड़ेगा ना। अब आप कहते नहीं आसमान में कहाँ है, इसमें अर्श कहाँ है, तो हर जगह आपको अल्फाज मेरे भाई थोड़ी ना मिलेंगे। जो कुरान है, कुरान में अल्फाज आ गया है अर्श। देखिए आप बोल चुके, मेरे थोड़ी सुन ले जरा। भाई हमने सुनने के लिए फोन आपके मेरे ये थोड़ी ना उठाया है, आपने सवाल पूछने के लिए फोन किया था, साहिल बन के आए थे। मेरे एतराज का जवाब देने का हक रखते हैं ना। हाँ, तो मेरे भाई ये पूरी हदीस तो सुन लीजिए जो मैं आपको बता रहा था। मुस्लिम शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 537। अल्लाह के नबी के पास एक मतलब जो बांदी होती है, लौंडी होती है, उसको लाया जाता है। अल्लाह के नबी उसका मतलब जो अकीदा है, आस्था है, उसको जांचने के लिए उससे मेरे भाई दो सवाल पूछते हैं। पहला पूछते हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो वो कहती है अल्लाह फिस समा, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानों में। दूसरा सवाल पूछते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो बांदी कहती है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि इसको आजाद कर दो, ये मोमिन औरत है। तो जब नबी ने उसको नहीं टोका कि नहीं तुम ये क्या कह रही हो, अल्लाह तो कुरान में कहता है कि तुम दो हो तो तीसरा अल्लाह है, तुमने अल्लाह को आसमान में कहाँ पहुँचा दिया। तो जब अल्लाह के नबी ने नहीं टोका तो आप लोग क्यों टोक रहे हो? तो हजरत आसमान में तो अल्लाह को हम भी मानते हैं ना, हमने इनका थोड़ा ही किया। तो बात ठीक है, बात खत्म हो गई। पर हम ये भी तो कहते हैं हमारे साथ है जात के एतबार। हाँ चलिए, इसकी दलील आप दे दीजिए। मैं पढ़ तो रहा था। क्या पढ़ रहे थे? माया कौन मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबियुहुम। हाँ, तो उसमें जात का अल्फाज दिखाइए। अल्लाह है, तुम पांच हो तो छठा अल्लाह है, तुम हाँ, इसमें जात का अल्फाज दिखाइए। तुम्हारे साथ अल्लाह है। अरे जात का अल्फाज दिखाइए भाई। तो हुआ जात के लिए आता है, मैं बता तो रहा हूँ। कहाँ लिखा है ये? जमीर है ये, हुआ जात के लिए आता है, आप इल्म के लिए आता है। मुझे किसने बनाया जमीर? ये जमीर मुहद्दिसीन फुकाहा ने बनाया ये जमीर। उसूल तो क्या वो क्या अल्लाह के नबी से बढ़ के थे क्या? जी, अल्लाह के नबी से क्या मेरे भाई बड़े थे क्या वो लोग? इसका मतलब जो अरबी सीख करके कुरान हदीस से सीख रहे हैं। सही बुखारी मेरे भाई उसकी हदीस में आता है, ठीक है, हदीस का नंबर है 4351। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम जमीन वालों पे बात नहीं सुन। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, आप एक काम करिए मेरे भाई, पहले जाके किसी अच्छे मदरसे से इल्म हासिल कीजिए, उसके बाद कॉल कीजिएगा, ठीक है? आपके भी इतनी इल्मी पहुंच नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ ना, हुआ जात के लिए आता है, मैं बता देता हूँ ना आपको, कुरान से बता देता हूँ। बताइए। हेलो, बोलिए। आपको भाई बता दूं? हाँ बताइए। अल्लाह ताला कहता ना अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, तो इसमें हुआ का लफ्ज आया। अल्लाह ताला वो है जो कायम भी है, हमेशा रहने वाला है। अल्लाह का इल्म नहीं, अल्लाह ताला हमेशा रहने वाला है। मैंने कुरान की आयत पढ़ दी हुआ के लिए, हुआ जात के लिए आता है कुरान से। आप मुझे एक दलील पढ़ दीजिए, हुआ इल्म के लिए। तो मतलब ये अरबी का जो सेगा है वो एक जगह मेरे भाई एक ही इस्तेमाल होगा और दूसरी जगह भाई वो दूसरी हो जाएगा। तो मैं अब वही कह तो रहा हूँ, आप मुझे पढ़ देना, हुआ इल्म के लिए आता। बात ही खत्म, क्लियर हो गई ना, आगे बात ना कहने की सुनने जरूरत है। इस आयत पे आपके कौन से इमाम ने कहा है कि अल्लाह ताला मेरे भाई हर जगह सबके साथ जात से मौजूद है? हम आपका फहम हम थोड़ी ना लेंगे, हमें किसी सहाबी का फहम बताइए। भाई मैं ये कह रहा हूँ, हुआ जात के लिए आता है या अफू भाई आपको मालूम है हुआ जात के लिए आता है या इल्म के लिए आता है? पहले मुझे बताया, जमीर पढ़ी आपने? नहीं, इल्म के लिए आता है इस आयत में। हुआ इल्म के लिए आता है। हाँ भैया, इस आयत में मेरे भाई ये कहीं नहीं उतरा हुआ है कि तुम अगर दो हो तो तीसरा अल्लाह तुम्हारे साथ है। मतलब कितने अल्लाह हैं आपके, ये बताइए। अल्लाह तो एक ही है। तो बस ठीक है, इसका मतलब जो ये आयत इससे माना खुद ब खुद साबित हो गया कि मेरे भाई यहाँ पे मतलब अल्लाह के लिए मुश्किल है। अल्लाह मतलब नहीं तो क्या अल्लाह ताला अपने को मेरे भाई अल्लाह में बात देगा? माज़अल्लाह, इतना गंदा कीदा है आपका। नहीं है अल्लाह ताला। नहीं, आप अभी इस आयत से भागेंगे नहीं। मुझे इतना बताइए, अल्लाह ताला एक है या अनेक है? अल्लाह ताला एक है। अल्लाह एक है ना, तो फिर आपका मेरे भाई ये दावा और दलील और मंतिक आपका बातिल हो गया। अल्लाह की शान है भाई, हर जगह हो सकता है। अल्लाह की शान है कि अल्लाह ताला हर जगह अलग अलग अल्लाह बना देगा। क्यों अलग अलग क्यों बनाएगा? खुद अलग ही अलग तो अल्लाह होता है ना।
आप भाई इंसान जहाँ से दो हैं वहाँ तीसरा अल्लाह, यानी कि मेरे भाई आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे 2 लोग हैं तो तीसरा अल्लाह है। एक अल्लाह मेरे भाई आपके वहाँ हो गया, और हम अब तो इलाहाबाद में भाई 2 लोग ये हैं, यहाँ सवाल पे एक आपका अल्लाह है तो दूसरा अल्लाह आपका ये इलाहाबाद में सवाल हो गया, अब तो तो कितने भाई सारे मेरे आपका भाई ये हर जगह सवाल अल्लाह ही अल्लाह हो बातिल है, गए। आपका ये सवाल बातिल है क्योंकि आप आपका अल्लाह की कीदा शान को बातिल है अपने ना। मुताबिक दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं अल्लाह अरे मेरी भाई तरह है आपका क्योंकि कीदा मैं ही एक बातिल बंदे है के तो मैं साथ क्या हूँ। कर सकता हूँ। जब आप ये कह रहे हैं कि मैं एक बंदे के साथ हूँ तो मैं हूँ, मैं दूसरे के साथ नहीं हो सकता, आप अल्लाह को उम्मत इसी की तरीके माँ, से मान ठीक रहे हैं। है, अल्लाह के नबी की प्यारी बीवी, वो जी क्या फरमाती हैं, वो जी कहती हैं कि जो मेरी शादी है वो अल्लाह के नबी से हम्म, अल्लाह सुब्हान व तआला ने 7 आसमानों के ऊपर से की है। हम्म, ठीक है, उम्मत की जो माँ है ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका भी अकीदा ये है कि जो मेरी शादी है जो अल्लाह के रसूल से हुई है वो अल्लाह सुब्हान व तआला ने 7 आसमानों के ऊपर से की है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस आपको का भाई नंबर है मैं इनकार नहीं कर रहा 7420। हूँ, आपको भाई मैं ये इनकार नहीं कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला अक्सर नहीं है, ये तो मैं अल्लाह के इनकार कर नबी ने नहीं रहा। फरमाया कयामत के दिन मैं अपने रब के पास जाऊंगा और वो लाला अपने जी को ले अर्श जाओ पर गाड़ी, होगा। ये भी हदीस आती तेल है ना है बुखारी मेरी गाड़ी शरीफ में, में, लाला जी हदीस को का ले जाओ, नंबर है 7440। किसी और के ले जाओ, इनके ले जाओ। तो वही भाई हम बता रहे जी हैं कि आपने जो ये आयत पढ़ी है इससे खुद ही आपका कीदा बातिल साबित हो रहा है। नहीं अफू भाई मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह को तो अर्श पर हम भी मानते हैं, हम इनकार नहीं करते, हम ये कहते हैं अल्लाह अर्श पर भी है, अल्लाह हमारे साथ भी है। आप बताएं अर्श अल्लाह पे हमारे भी है, साथ है फर्श या पे नहीं है? भी, आपके साथ भी है, अल्लाह ताला मतलब हर जगह है ना। यही तो मेरे भाई देवबंदियों का कीदा है जो बातिल है, हाँ वहदतुल ये तो अल्लाह ताला वजूद खुद वाला। कुरान में कह रहा है ना आपको भाई, अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है चलिए ना। ठीक है, आपकी जेब में अल्लाह है? जैसे ना हाँ भाई, अल्लाह ताला हर जगह है तो जेब भी तो मेरे भाई आपकी जगह है, उसमें अल्लाह है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। भाई जो टॉयलेट है, सवाल करते हो बाथरूम तो है, क्या भाई उसमें आप भी ये अल्लाह है? सवाल कर रहे हैं, यहाँ ये तो भाई सवाल कर रहे अकीदा हैं इतना कभी मेरे किसी भाई सहाबा आपने ने किया बातिल है? और इतना 2 कौड़ी का घटिया कीदा बनाया है तो सवाल भी तो मेरे भाई घटिया होंगे। क्या क्या कैसे कैसे तो सवाल जैसा करते हैं कीदा तो भाई बनाओगे बिल्कुल भी वैसे डर नहीं सवाल होंगे लगता, भाई। बिल्कुल भी डर नहीं लगता अल्लाह ताला से। ऐसा कहते हो महले थी, हमने ये कहा अल्लाह हमारी जेब में, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, हमने कहा अल्लाह हमारे साथ है, साथ होने का मतलब हमारी जेब में। तो भाई डर नहीं लगता क्या बिल्कुल भी अल्लाह से ऐसे ऐसे सवाल पूछने में भी? हाँ बताइए भैया। अल्लाह से डर नहीं लगता क्या बिल्कुल? हमने ये कहा अल्लाह हमारी आपको जेब में, डर हमने नहीं कहा लगता हमारे भाई? साथ है, हमारा अल्लाह तो ना किसी हमने की कहा जेब अल्लाह में, ना हमारे साथ। टॉयलेट में, ना बाथरूम में। मैं जिस कुरान अल्लाह की को मानता आयत हूँ वो है, अपनी शान कुरान के की लायक आयत अपने है। अर्श के ऊपर कायम है। अफू भाई लेकिन आप जिस अल्लाह को मान रहे हो अफू वो भाई अल्लाह, आपने माज़अल्लाह अल्लाह की शान को ऐसा कर दिया है कि वो हर जगह मौजूद है। तो भाई पूछेंगे नहीं आपसे कि क्या अल्लाह आपकी खुद जेब कह में रहा भी है, अल्लाह खुद टॉयलेट कह में रहा भी है, है, हमने नहीं और जो कहा। जहन्नम है, जहन्नम भी अल्लाह खुद भाई ये कह क्या रहा जगह है। है? तो क्या अफू माज़अल्लाह भाई अल्लाह ताला अल्लाह क्या खुद मेरे कह भाई रहा उसमें है। जहन्नम में भी अफू है? भाई अल्लाह ताला नहीं, खुद अब कह आप रहा है जवाब मैं तुम्हारे दीजिए, या साथ तो हूँ, अपनी तो बातिल इसमें अकीदे वाली से बात क्या तौबा रहेगी? कीजिए या मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोले अच्छा क्या सवाल है आपका? बोले बोले सवाल बोले अफू भाई। भाई हेलो। आपने इतना मेरे भाई बातिल अकीदा बनाया तो मेरी इसमें कोई गलती अच्छा नहीं है। मेरा आप बात खुद ही अल्लाह की अल्लाह ताला शान कह रहा है में कुरान में, भाई आप तौहीन कर रहे हैं, मेरी कोई अल्लाह गलती नहीं कुरान है। में कह रहा है अफू भाई, अल्लाह कुरान में कह रहा है। तो आपकी अकल से कुरान थोड़ी ना समझेंगे। अल्लाह के नबी ने कब बताया कि ए सहाबा अगर तुम 2 होते हो तो तीसरा अल्लाह है? बताइए, कुरान दलील में पेश नहीं है, कीजिए। अल्लाह कुरान सुब्हान में व नहीं तआला है। फरमाता है सूरह अल-बकरा अच्छा सूरह एक नंबर काम 2 करें, आयत नंबर अच्छा 111 में, एक कुल काम हातु करें बुरानकुम इन तुमकुम सादिकीन, अगर आप जी सच्चे हैं अपने दावे में तो उसका सबूत पेश कीजिए। मैं उमर बोल रजी देता अल्लाह हूँ। तआला अन्हु और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, अच्छा सुना वो 2 लोग साथ में थे, तो क्या तीसरा अच्छा अल्लाह था वहाँ पे मौजूद था? ये अल्लाह के नबी ने बताया दोनों सहाबा से कि हाँ तुम दोनों, तीसरा अल्लाह है तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है? सुना कुरान की आयत को अपनी अकल से समझोगे ना, मेरे भाई सलफ का फहम है ना किसी मैं अपनी मुहद्दिस अकल का से अकवाल है। मैं उम्मत की मैं माओ अपनी के अकल से हवाले नहीं दे रहा हूँ, समझ अल्लाह के नबी के हवाले दे रहा हूँ, आपको मानना ही नहीं है। मैं हम किसके अर्श दे पे रहा हूँ, भी मैं मानते हैं, किसके दे रहा फर्श हूँ, पे भी मानते हैं, यहाँ पे भी मानते हैं, वहाँ मैं पे भी किसको दे रहा मानते हूँ? हैं, हर जगह यहाँ वहाँ मानते का हैं। लफ्ज़ तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा हर बंदे के साथ अल्लाह है, अल्लाह कुरान में कहते हैं। हाँ तो हर बंदा भी तो मेरे भाई यहाँ वहाँ है ना, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, तो टॉयलेट अल्लाह में की है, शान बाथरूम है, में है। अल्लाह जब एक बात अल्लाह ने कह दी तो हम उसमें दखल क्यों दें? हम्म? जब एक बात अल्लाह ने साफ कह दी, अच्छा आप इसका माना कर दें, माया कौन हम कुछ नहीं करेंगे, आपने उस आयत से माना किया है, आप हमको बताइए किस आयत से? कि तुम 2 हो तो तीसरा अल्लाह है, तुम 3 हो तो चौथा अल्लाह है। इस आयत से हाँ। आपने ये माना ले लिया कि अल्लाह ताला खुद मौजूद है अपनी जात के साथ। तो माशाअल्लाह खुद दुनिया कह में रहा है। जितने इंसान हैं उतने अल्लाह हैं, आपने नहीं, ऐसा अनेकों कुछ अल्लाह नहीं है। बना दिए।
आपका अकीदा ही बातिल साबित हो गया। मैंने की जाएगी अल्लाह की शान में तावील थोड़ा, तो तावील तो आपने कर दी ना, हम कहाँ तावील कर रहे हैं। मैंने तो जो इस आयत का हकीकी माना आपको बताते हैं, ठीक है, जो आपके आलिमों ने भी आपको नहीं बताया होगा। इस आयत में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बात है, ठीक है, हिकमत है, वो ये है कि तुम दो हो तो तीसरा अल्लाह है। इसका माना क्या है कि तुम दो लोग अकेले में तन्हाई में तुम सोच रहे हो कोई हमको देख नहीं रहा है, लो चोरी कर लें, जिना कर लें, खून कर लें, रेप कर लें, नहीं, तीसरा अल्लाह है। ये इसका माना है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तुम दो हो तो तीसरा अल्लाह है, तुम तीन हो तो चौथा अल्लाह है। अल्लाह का इल्म, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की पावर तुम्हारे साथ है, तुम अल्लाह से छुप ही नहीं सकते हो। ये इस आयत का माना है। ये किस जाहिल ने माना ले लिया कि खुद अल्लाह आपके साथ खड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये किसने तफसीर की है? ये आयत का माना है, हकीकी माना है। तो किसने बताया ये आपको आयत का? तमाम सलफ ने बताया है, एक ने भी ये नहीं कहा। मेरा चैलेंज है 1450 साल में किसी एक भी अहले सुन्नत के मुहद्दिस इमाम ने इस आयत से ये माना ही नहीं लिया कि खुद अल्लाह अपनी जात के साथ, अगर दो हैं तो तीसरा अल्लाह मौजूद हो जाएगा, तीन है तो चौथा अल्लाह बन जाएगा। ये सब मेरे भाई फर्जी बकवास है। ये मेरे भाई कुरान की आयतों के साथ बिल्कुल खेल करना है। जब अल्लाह ताला ने बता दिया कि रहमान अपने अर्श के ऊपर मेरे भाई कायम है, अपनी शान के लायक, उसको मानिए। अभी तो आप यूँ कह रहे थे उलमा की बात क्यों मान रहे हैं, अल्लाह के रसूल की बात माने। जब मैं कह रहा था हुआ जात के लिए आता है, उलमा ने बताया, आपने यहाँ उलमा की बात क्यों नहीं मानी? भाई कौन सी उलमा की बात नहीं मानी? आप कह रहे ना उलमा को छोड़े, अल्लाह के रसूल की बात। अरे कहीं पे वो अल्फाज अलग। देखिए एक चीज बता दें, अरबी का जो सेगा है ना वो हर जगह एक ही इस्तेमाल भाई नहीं होता है। तुम लोग कहते रहा हूँ, आप मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ही सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ पे जो अल का सेगा है, अल का सेगा में क्या आएगा? तमाम आएगा। और यही दूसरी जगह जब भाई ये अल का इस्तेमाल होगा तो उसका मानना चेंज हो जाएगा। अरबी के कायदे कानून आप हमको ना बताइए। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, हुआ इल्म के लिए आता है, एक आयत पढ़ते हैं इसके। इस आयत में इल्म के लिए है। अब आपका दावा ये कि यहाँ पे जात है, तो आप मुझे मेरे भाई अपनी अकल पेश ना कीजिए, मेरे को 1450 साल के मुहद्दिस का नाम बताइए। इसमें लिखा हुआ है इल्म के एतबार से। हाँ, इस आयत में लिखा हुआ है इल्म के एतबार से। पढ़ना बिल्कुल पढ़ना आयत। हम क्यों पढ़े? दलील आप दे रहे हैं, आप बताइए। आप कह रहे हैं इल्म के एतबार से, तो आप पढ़ेंगे ना, मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे भाई तो आप पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, हवाला बताइए जरा, कौन सी आयत है ये? कौन सी सूरह है? कौन सी आयत है? सूरह मुजादिला आयत नंबर 7। हाँ, एक मिनट रुकिए भाई, अभी बता रहे हैं। सूरह मुजादिला आयत नंबर 7 जी। पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ जब पढ़ेंगे ना तब समझ जाएगा। सुनने वाले, क्या तुमने ना देखा कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। जहाँ कहीं 3 शख्सों की चुप रहो यार। अफू भाई आयत पढ़े। जो चौथा वह मौजूद है और पास की तो वो छठा है, और वह न उससे कम है और न उससे ज्यादा की, मगर या कि वह उनके साथ है। जहाँ कहीं हो फिर उन्हें क़यामत के दिन बता देगा जो कुछ उन्होंने किया। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। लो भाई, इसमें भी इल्म आ गया, इसी आयत में इल्म आ गया। तुम्हारे मुंह पे मेरे भाई तमाचा पड़ गया। आप तो तर्जुमा पढ़ रहे हैं। तो तर्जुमे तो मेरे भाई तुमने हमको भाई सब बताया। आयत पढ़ देना। अभी तुमने हमको क्या बताया कि अगर तुम 3 हो तो चौथा अल्लाह है, 4 हो तो 5वां अल्लाह है, 2 हो तो तीसरा अल्लाह है। तुम हो जाओ, ज्यादा हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ भी हो। क्या चीज? इससे कम हो जाओ, इससे ज्यादा हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम जहाँ भी हो। अल्लाह आयत पढ़ने में अफू भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आयत आप पढ़िए ना मेरे भाई। जब आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं तो देख के आयत क्यों नहीं पढ़ सकते? देख कर बिना नहीं, मेरे पर तर्जुमा वाला है ना, उसमें अरबी नहीं लिखी हुई है। हिंदी का कुरान है क्या? हाँ। उर्दू नहीं आती? अरे भाई तुम अजीब आदमी, जितनी उर्दू अरबी हमको आती है ना मेरे भाई, इमाम अबू हनीफा को भी उतनी नहीं आती होगी। तो हजरत एक आयत तो पढ़ दे, मैं भी सवाब कमा लूंगा। एक आयत पढ़ दे। नहीं, आप सवाब ना कमाइए, आपने तो मेरे भैया अल्लाह ताला को माज़अल्लाह हर जगह उसको ठहरा के। ये कहाँ लिखा हुआ है? इसी आयत में ये है कि बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है। तो जानना क्या है? जानना इल्म है, जात नहीं है। झूठे मक्कार कज़्ज़ाब आदमी। पूरा तर्जुमा पढ़ो हजरत, एक हदीस पूरा तर्जुमा पढ़ो इसका। अभी तुम्हारे मुंह से खुद ही मेरे भाई बवासीर की तरह सारी मेरे भाई जो बीमारी खत्म हो जाएगी।
तो चलो रो क्यों है? यही आया हुआ है कि बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। इसी सूरे में इसी आयत नंबर 7 में बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। ये लाइन तुमने क्यों खा गए? ये लाइन तुम क्यों खा गए? मैंने तो आयत पूरी भी नहीं पढ़ी, क्यों परेशान हो रहे? मैं कहता हूँ तो आधी आयत से माज़अल्लाह आधी आयत से अपना कीदा बना लिया, बाज आयतों पे अमल लाते हो, बाज आयतें छोड़ देते हो। इशारा दे रहा हूँ, इस सूरत के अंदर लिखा हुआ है। मैंने कब कहा इतने टुकड़े में लिखा हुआ है? मैंने कहा ये मैं सिर्फ तो पूरी आयत से इंसान अकीदा बनाता है ना। तुम तो इतने बड़े जाहिल हो, खाली 2 लाइन से अपना अकीदा बना लिया। तो मैं कहता रहा हूँ जहालत वाली बातें क्यों कर रहे हैं? पूरी आयत पढ़ देना। आयत पढ़ने नहीं आती तो हाँ कर दे, नहीं तो फिर मैं पढ़ देता हूँ। क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? देखो ये अरबी के दोस्त हमको ना दो, ठीक है? आप एक काम करो, अरबी हमें सुनना ही नहीं है। तुमने घपला किया है तर्जुमे में, तुम तर्जुमा पढ़ो। हम तो अरबी नहीं पढ़ना, अरबी हम पढ़ने नहीं देंगे तुम्हें। तो मैं नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ लो ना। मैं कहता हूँ हम भी नहीं पढ़ेंगे। बात तुमने तर्जुमे पे झूठ बोला था, तुम तर्जुमा करो इसका। अल्लाह मेरी तौबा है, झूठ तर्जुमे पे करते हो, बातें मारते बड़ी बड़ी। मतलब शैतान के छोटे भाइयों ना पड़ेगा। जब इसमें खुद ही इसी आयत नंबर 7 में आ गया है कि बेशक अल्लाह सब कुछ जानता है, तो इसमें तुमने ज़ात कहाँ से मुराद ले ली बाबू? मेरे मुन्ना कौन से मदरसे से पढ़े हो? तो बताता रहा हूँ। कौन तुम्हारा उस्ताद है? जरा अपने अल्लामाओं से बात कराओ, जरा उनके सर पे इल्मी अंदाज में जूता मारे। मेरे सामने एक आयत नहीं पढ़ रही तुम्हारे। जाहिल सी बात है, जब तुम जाहिल हो तुम्हारे सामने कुरान हदीस पढ़ के क्या फायदा? तुम आलिम हो। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का फतवा क्या है बताओ? चलो आप आलिम है क्या? इधर क्यों भाग रहे हैं आप? आलिम है ना, अहले हदीस का बच्चा आलिम होता है। एक आयत पढ़ के सुना दे सूरत में। नहीं तो मेरे भाई आयत तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है ना। अब तक गुफ्तगू काहे पे कर रहे थे, फिर जब हुज्जत नहीं थी तो? अरे तो तुम सवाल कर रहे थे, सवाल का जवाब दे रहे थे। मैं जब आयत पढ़ रहा था मुझे इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का ये अकीदा है कि उनके नजदीक जो अल्लाह को अर्श पर नहीं मानता वो काफिर है। तो तुम्हारे इमाम साहब ने तुम्हारे मुंह पे पहले पेशाब कर दिया है, ठीक है? रसूल की हदीस पढ़ो। जो अल्लाह को अर्श पर रसूल की हदीस ना माने वो काफिर है। इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का फतवा, मुनाफिकीन और मुशरिकीन पे जो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का फतवा है कि जो अल्लाह को अर्श पर ना माने वो काफिर है। अल्लाह को अर्श पर ना माने काफिर है। हाँ, तो हमने कब इनकार किया अल्लाह अर्श पर नहीं है? तो तुमने तो अल्लाह को मेरे भाई जमीन पे ला दिया ना। तो अपने साथ माना। अल्लाह कुरान में कह रहा है अल्लाह ताला एक है ना, तो एक ही वक्त में अल्लाह अर्श पे भी है और वो 2 के साथ तीसरा भी बन जाता है, 3 के साथ चौथा भी बन जाता है। क्या मजाक कर रहे हो अपने अकीदे के साथ यार? शर्म करो थोड़ा, आईने में देख कर मुंह पे पानी की छींटे मारो, थोड़ा होश में आ जाओ। क्या बोल रहे हो समझ में आ रहा है? अल्लाह ताला को अपने से मुशाबहत देने वाले अपने मेरी तरफ सुनो। अल्लाह नहीं आना चाहे तो नहीं आ सकता। अगर अल्लाह ताला के एतबार से होना नहीं, ये तो वही बात होगी। कल को हनफी कहेंगे कि अल्लाह ताला चाहे तो अल्लाह झूठ भी बोल सकता है, माज़अल्लाह। अल्लाह ताला कल को चाहे तो अल्लाह चोरी भी कर सकता है, माज़अल्लाह। तो ये हनफियों का धर्म क्या है मेरे भाई? ये कोई बात थोड़ी ना होती कि अल्लाह चाहे तो ये कर ले, अल्लाह चाहे तो वो कर ले। अल्लाह वही करेगा जो अल्लाह की सुन्नत है, जो अल्लाह ने कुरान में कह दिया है। अल्लाह ताला वो नहीं करेगा जो हनफी चाहेंगे, ठीक है? रहम करे। तुम्हें समझाना और पंजाब पैदल भाई जाना तुम्हें ऐसे अंदाज में समझा दिया, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल गई है। अप्पू भाई तुम जाहिल आदमी है, तुम्हें कुरान की आयत पढ़ना नहीं आता। तुम भाई दिमाग की बत्ती जल गई है आपकी, ठीक है? हमारे दिमाग की बत्ती जलेगी। मैं हदीस पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमा दिया रहमान अपने अर्श पे कायम हुआ, उस पे ईमान रखो, ज्यादा अपना दिमाग ना चलाओ। देखिए सुने, अल्लाह ने कहा अर्श पर है, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? हैं? यही कहना चाह रहे हैं ना अल्लाह ताला अर्श पर है? अल्लाह ने कहा है नहीं, इस पे तो आप मानते हैं ना कि अल्लाह ताला अर्श पे। अच्छा, तो इस मामले में हम दोनों एकदम सही हैं। अच्छा, आप भी अर्श पे मान रहे हो, हम भी अर्श पे मान रहे हैं। इख्तिलाफ यहाँ पैदा हो रहा है जब आप कह रहे हो अल्लाह जमीन पे भी सबके साथ खुद आ गया है। अप्पू भाई सुनते क्यों नहीं हो अल्लाह के बंदे? नहीं, आपने जो ये तर्जुमा मेरे भाई आधा पेश किया था, ये क्यों पेश किया था इसकी मेरे भाई तर्जुमा पेश किया? कौन सा? मैंने तो कोई पूरा तर्जुमा पढ़ी नहीं आपसे ना। मैंने पूरी आयत की बात करी है आपसे, ना ही मैंने पूरा तर्जुमा पढ़िए। चलिए बताइए। तो कहा है इसका लफ्ज ये है। पूरा तर्जुमा बताइए। अभी तो आप कह रहे थे आपके लिए आयत हुज्जत नहीं है, मुझसे क्यों पढ़वा रहे? तो अरबी की आयत हुज्जत नहीं है ना, लेकिन आपकी अशरफ अली थानवी का जो तर्जुमा है वो तो हुज्जत है ना। किसने कहा है आपसे? आला हजरत का तर्जुमा है वो तो हुज्जत होगा ना। बरेलवी देवबंदी 2 ही लोग हैं मेरे भाई दुनिया में जाए, तो उनमें से कोई एक ही तुम हो। आयत पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, आप आयत पढ़ेंगे या? अरे भाई आपने क्या मेरे भाई तनख्वाह पे हमको रख रखा है कि आप आयत पढ़वाओगे, अरबी पढ़वाओगे? आप मेरा टेस्ट लोगे? अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं, बाप को बात क्यों कहते हैं? पहले ये सीख के आओ, बाद में हमसे अरबी पे बात करना। अच्छा
اچھا آپ کو آتا ہے؟ تمہارے وہاں عربی میں ہوتا کیا ہے؟ تمہارے وہاں سب کچھ تو اردو میں ہوتا ہے. نماز کی نیت کرو گے تو اردو میں کرو گے. میں نیت کرتا ہوں فلاں فلاں نماز. یہاں تک کہ تمہارے میرے بھائی حنفی فقہ کا فتویٰ ہے کہ فارسی میں نماز بھی ہو سکتی ہے, فارسی میں اذان بھی ہو سکتی ہے. تو تم عربی کا دھوپ کس پہ جما رہے ہو بھیا؟ پہلے خود تو عربی پہ عمل کر لو. چلیے سامعین, یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو بیچارہ حنفی مقلد ہے, اس نے آدھا ترجمہ پڑھ کے لوگوں کو مطلب عقیدہ بدل کرنے کی کوشش کی. پورا ترجمہ یہ بتا نہیں سکتا ہے. آپ نے کہا حجت نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں بول رہا. آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے لیے حجت ہے تو آپ ایک آیت پڑھ کے دکھا دیں جس میں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے, پڑھ کے بتائیں. ہم نے تو بتا دیا, کتنی ساری آیتیں میرے بھائی حوالہ دیا ابھی. ایک آیت پڑھیں, ایک آیت اللہ تعالیٰ. چلیے بھائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 میں, سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 میں, سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59 میں, الرحمن علی العرش استویٰ, یعنی کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا. بھائی ٹھیک سے قرآن پڑھو اللہ کے. اب بھائی اس سے زیادہ ٹھیک سے تو تم ہی لوگ پڑھ سکتے ہو, زبان توڑ مڑوڑ کے پچھواڑا چاٹ کے. اب اس سے زیادہ اچھا قرآن کوئی حنفی نہیں پڑھ پائے گا. دوبارہ پڑھیں, چلو دوبارہ پڑھیں. بھائی دیکھیے میں آپ کا مقلد تو ہوں نہیں, ٹھیک ہے, بنو یار, تم تو جاہل ہو. میں نے پڑھ دیا ہے, آڈیو میں آ گیا ہے, آڈیو بھی میرے بھائی شیئر ہو جائے گی, سارے لوگ سن لیں گے. ٹھیک ہے, عربی کا بول بچن کس کا میرے بھائی کتنا ہے سب سمجھ میں آ جائے گا. اس میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اس کے اعتبار سے کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ بھائی خود پڑھو نا قرآن, میں نے حوالے دے دیے. میں کوئی تم میرے کو تنخواہ دے رہے ہو جو میں تم کو پورا دن سکھاؤں گا. اچھا, الرحمن علی العرش استویٰ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں تو ابھی کیا میں چائنا میں بول رہا تھا بھنگی آدمی. میں کہہ رہا ہوں بھائی یہی آیت پڑھی ہے نا آپ نے؟ ہاں تو ٹھیک ہے, بس فیصلہ ہو گیا, آپ نے مان لیا اللہ تعالیٰ اپنے جو عرش اس پہ الحمدللہ قائم ہے, بات ختم ہو گئی. اب اس کے مانتے, ہم نے انکار تو نہیں. اب جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, سب کے ساتھ موجود ہے, ذرے ذرے میں موجود ہے, وہ میرے بھائی دنیا کا سب سے بڑا گمراہ ہے, کافر ہے. ایک آیت پیش کرتے ہیں, اس پہ ایک آیت پیش کرتے ہیں. آیت پیش تو کر دی بھائی, ابھی تم نے خود ہی اپنے منہ سے پڑھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اہل حدیث میں وہ ٹیلنٹ ہے کہ باطل کے منہ سے حق کو الحمدللہ اگلوانا جانتا ہے. جاہل باتیں نہیں کرا کرتے, جاہل باتیں نہیں کرا کرتے. ہاں تو اسی لیے تو کہہ رہے ہیں بات آپ نہ کیجیے, کیونکہ جو جاہل ہوتا ہے مقلد ہوتا ہے, اس پہ اہل علم کا اجماع ہے. ذات کے اعتبار سے ہر جگہ مانے وہ بندہ کافر ہے. آیت پڑھے, بالکل کافر ہے نا, بات نہ کرے, آیت پڑھے حدیث پڑھے, فالتو بات نہ کرے, اپنی عقل نہ دوڑائیں. پڑھ تو دیا بھائی, جو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے. کافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کافر کا معنی ہوتا ہے بندے کے ساتھ کفر کرنا, انکار کرنا. تو جو حنفی ہیں انہوں نے انکار کر دیا. ابے بھائی جانوروں کی طرح نہیں بھوکا کرتے, آپ نے جو الزام لگایا بھائی اعلیٰ نسل کے کتے تو آپ ہیں, تو اس میں میری کیا میرے بھائی غلطی ہے یہ بتائیے. تو تم یہ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو جو ذات کے اعتبار سے اپنے ساتھ مانے وہ کافر ہے, اس کے بارے میں ایک آیت پڑھ دیں, ایک حدیث پڑھ دیں, عقل نہ چلائیں, صرف آیت اور حدیث پڑھیں. چلو کافر کا معنی کیا ہوتا ہے, چلو بتاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں صرف آیت پڑھیں. کافر کا معنی ہوتا ہے کفر کرنے والا, انکار کرنے والا, یعنی کہ جو اللہ کی بات نہ مانے اور جو اللہ کے نبی کی بات نہ مانے, گویا اس نے انکار کر دیا. چلیے اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ نے کن کن چیزوں کا انکار کیا ہے. آپ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 کا انکار کیا, سورہ الفرقان سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 کا انکار کیا, سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 29 کا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 55 میں, عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اور تجھے ہم اپنی جانب اٹھانے والے ہیں, اٹھانے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے, اور تجھے ہم اپنی جانب اٹھانے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ زمین پہ بھائی وہ ہر دو لوگ کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتا نہ بلکہ بلاتا, کیا ہو ادھر آ جاؤ. وہ اللہ کی شان ہے. ہاں یہ کیسی شان ہے کہ اللہ زمین پہ ہو تو بھی اٹھا رہا ہے, مطلب یہ منمانی شان بنا رہے ہو. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ ہے جب کہہ رہا ہے میں تیرے کو اٹھا. ارے تو ابھی یہ عقیدہ تو تمہارا ہے نا, اللہ زمین پہ, ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اور اللہ اس دنیا میں چھوٹی سی زمین پہ وہ آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ میرا بہت بڑا ہے. اب یہ حنفیوں کا اللہ کوئی چھوٹا اللہ ہو گیا ہوگا جو ہر جگہ سب کے ساتھ موجود ہو جاتا ہے. ہمارا اللہ معاذ اللہ چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا اللہ ہے. تو بھائی مجوری کرتے ہیں, دو بات کے بعد چاہے بات کریں یا نہ کریں, فون کاٹیں جو مرضی کریں. بھائی فون تو ہم نہیں کاٹیں گے, فون آپ نے کیا ہے, آپ نے اپنا باطل عقیدہ بتایا ہے کہ 3 ہے تو چوتھا اللہ ہے, 4 ہے تو 5واں اللہ ہے.
तो कितने अल्लाह हैं? अल्लाह का कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा अल्लाह का कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा अल्लाह का कुरान कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं नहीं कह रहा अल्लाह का तो कुरान आपने कह मेरे रहा अभी घसोड़ दी है ना, जात का अल्फाज ही नहीं है वहाँ पे, इसमें वरना मेरे किसी मोहद्दिसीन ने दिया जात को। एक आयत पढ़े, आयत में अल्लाह ताला इल्म के एतबार से तुम्हारे साथ है, एक आयत पढ़े। भाई ठीक है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 4351। एक आयत पढ़े, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम मुझे आमीन नहीं समझते? मैं उस अल्लाह का आमीन हूँ जो आसमान पर है, मेरे पास सुबह और शाम आसमान की खबरें आती हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं आप मुझे एक, चलिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ पूरी हनफियत को, पूरे मेरे भाई हदीस के मेरे भाई जकीरे में एक अल्लाह के नबी की हदीस बता दीजिए जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा हो कि अल्लाह ताला जो जमीन है उस पर भी मौजूद है तुम्हारे साथ। एक दलील दे दीजिए, मैं तौबा करके आज मेरे भाई हनफी बन जाऊंगा। चलिए ओपन चैलेंज है आपको भाई। हमने तो आयतों में आपको अर्श का, आसमान का, बुलंदी का, ऊंचाई का सब कुछ आपको मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया। आप जमीन का एक हवाला तो दीजिए। मैं बता तो रहा हूँ, जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया मुझे अल्लाह की नबी की हदीस चाहिए, क्योंकि जो कुरान है वो अल्लाह के नबी ने सबसे बेहतर समझी है। नबी जैसा समझाएंगे वैसा समझेंगे, तुम्हारी अकल से नहीं समझेंगे। अच्छा तो फिर एक काम करो, मुझे एक हदीस ऐसी दे दो जो अल्लाह ताला। मैं नहीं दूंगा, तुम दोगे दावा, तुम्हारा अकीदा तुमने क्यों बनाया इतना घटिया? तो जब तुम कह रहे हो तुम्हारे लिए कुरान इतना घटिया अकीदा क्यों बनाया कि तुम्हें मेरे भाई लोगों से भीख मांगना पड़े? मतलब अकीदा घटिया अपना बनाओगे, भीख हमसे मांगोगे? तुम जाहिल आदमी हो, तुम ये हालत टाइट हो गई। इसीलिए कह रहे मेरे भाई किसी अंगूठा चूसने वाले बच्चे से बात करो, ठीक है? अहले हदीसों से बात करने की औकात नहीं है तुम्हारी। पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, तुम कुरान नहीं पढ़ रहे। अरे कुरान क्यों पढ़ूं भाई तुम्हारे सामने? तुम कौन हो? तुम कोई अल्लामा हो, फरिश्ते हो जो खाली तुम्हारे अरबी समझ में आएगी? तो तुम दावा अपना कहाँ से पेश कर रहे हो? हाँ मेरे समझ में आएगी, आप पढ़ें इंशाल्लाह। अरबी समझ में आएगी? आयत पढ़ा सूरह मुजादिला। नहीं अरबी समझ में आएगी। अरबी में पूछे मुजादिला की आयत पढ़े, मैं समझूंगा। अरे तुम्हारे क्या नौकर क्या बैठे हुए? अजीब पागल आदमी हूँ। दलील तुम पेश करोगे, भीख में हमसे कहोगे पढ़ो। जानवरों की तरह नहीं पता तो चलिए भाई, आज ये साबित हो गया कि हनफी बेचारा अपने बातिल अकीदे में आज ऐसा अटका, ऐसा फंसा कि उसने अल्लाह सुब्हानो तआला की शान में भी तौहीन कर दी और दीन इस्लाम से भी बेचारा बाहर हो गया। रोज बातें नहीं करते जाहिल आदमी। भाई मैं तो आपको मेरे भाई अल्लाह के अर्श पे होने की, आसमान पे होने की इतनी आयतें, इतनी हदीसें बता दूंगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। मुझे एक हदीस पढ़ के दिखा दे। मुस्नद शाफई की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक है, जुमे का दिन वो बाबरकत वाला दिन है जिसमें तेरा रब जो बुलंदियों और बरकतों वाला है अपने अर्श पर बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जब अर्श नहीं था तो अल्लाह कहाँ था? अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है, अबू दाऊद की हदीस है, हदीस का नंबर है 4726 कि तुम जानते हो कि अल्लाह कौन है? अल्लाह का अर्श आसमानों के ऊपर है और अल्लाह अर्श की वजह से क्या पूछ रहे हो? अर्श नहीं था तो अल्लाह ताला कहाँ था? इसका जवाब इमाम मालिक रहीमुल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने दौर में दे दिया था कि जो ये बिदती सवाल करे वो खुद बिदती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी देर से तुमसे बात कर रहे हैं, हम समझ गए थे कि तुम बिदती हो। अच्छा और कि ये तो बिदती वाला सवाल है कि जब अर्श नहीं था अल्लाह कहाँ था? अल्लाह तो अर्श तो बाद में बनाया। जितना अल्लाह ने बता दिया है कि अल्लाह का जो अर्श था वो पहले पानी पे था, बाद में सातों आसमान के ऊपर हो गया। अब अर्श नहीं था तो अल्लाह कहाँ था, क्या कर रहा था, लेटा था, बैठा था, खड़ा था? ये सब बिदती वाले सवाल है। अरे जाहिल बात तो सुन लो, अपने अपने गा रहे हो बहन। क्यों अल्लाह की शान में तौहीन करते हो हनफियों? क्यों हनफियों सुधर जाओ। तुमने कहा अल्लाह ताला तुम्हारी जेब में जाहिल भारत छोड़ो, ताकि मेरे भाई जो मतलब जो नए बेचारे मुसलमान हैं उनको इस्लाम पे अमल करने का मौका मिले। ये हनफियत के चक्कर में कोई मेरे भाई इस्लाम पे अमल ही नहीं कर पा रहा है। बैठे हो कुरान हदीस सबसे ज्यादा मुनकिरीन हदीस जो हुए अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि हम देखते हैं तेरे मुंह को बार बार आसमान की तरफ उठता हुआ। तो अल्लाह ताला जब अर्श पे है तभी तो अल्लाह के नबी का जो चेहरा है जो आसमान की तरफ अल्लाह के नबी उठाते थे, अल्लाह ने मेरे भाई देखा ना। अगर दाएं बाएं होता तो अल्लाह ताला मेरे भाई फौरन ही फेस टू फेस देख लेते, लेकिन यहाँ अल्लाह कह रहा है कि हम देखते हैं तुम्हारे चेहरों को आसमान की तरफ उठता हुआ। आप ये किन किन आयतों का इनकार करोगे?
हम तो किसी आयत का इनकार नहीं करते। अल्लाह ने सारी आयतों का इनकार कर दो। जितना माना हमने। अल्लाह सुब्हानो तुम कह तआला रहे हो ना? फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 55 में कि और ईसा अलैहिस्सलाम को हम एक अपनी आयत जानिब पढ़ो, उठाने फजूल की वाले हैं। बातें ना करो, आयत पढ़ो, सिर्फ आयत, फजूल सूरह की बातें नहल ना आयत करो, नंबर अपनी अकल 50 ले चलो। में आयत पढ़ो, आयत पढ़ो, अल्लाह आयत, सुब्हानो तआला आयत पढ़ो, फरमाता नहीं है कि वो अपने रब से आयत डरते पढ़ो, हैं जो उनके आयत ऊपर पढ़ो, है। आयत। जाहिल कहीं के बंदे अपने आप उनके में मुफ्ती, साथ तुम्हें एक नहीं आयत है, पढ़ने दो नहीं के साथ आती, तुम्हें एक तीसरा आयत अल्लाह पढ़ने नहीं नहीं है, आती। ये नहीं कहा, तो जिंदगी बल्कि सारी ये ऐसी कहा जला कि दी वो तुमने। अपने रब से डरते सारे हैं जो उलमा पे उनके तंज ऊपर करते हो, है। तुम जाहिल हो, तुम्हें एक आयत पढ़नी नहीं आ रही। अल्लाह आयत सुब्हानो पढ़ के तआला सुनाओ मुझे, फरमाता है सूरह आयत मरियम पढ़ की के आयत सुनाओ। नंबर तुम्हारी 57 में फजूल कि बातें हमने नहीं सुननी, उठा आयत लिया पढ़ के उसको सुनाओ। ऊंची जगह पर। आयत पढ़ के सुनाओ मुझे। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है अरे सूरह आयत सजदा पढ़ की यार, आयत नंबर 5 में कि आयत पढ़नी अल्लाह आती है अपनी नहीं? तदबीर से अहकाम आयत पढ़नी आसमान आती है से नहीं? जमीन पर उतारता है। अरे अगर आयत अल्लाह पढ़नी ताला आती है दो नहीं के आती? साथ तीसरा अल्लाह होता तो आसमान से काहे के लिए उतारता, बेहतरीन आजू बाजू ट्रांसफर कर देता, अगल बगल दे देता, क्योंकि अल्लाह ताला